जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. परमहंस परिविजय कचार्य सोदर शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन पीवीटी पाणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्री गुरु परंपरा की निताई गो प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च
स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। So, सबसे पहले सब बहुत I'm very happy to be here. Very nice to see every one of you after a long time. So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Conversations between Narad and Vyas. Text number 30. Text number 30. Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisrikshata Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jhajire Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisikshata Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jhanire Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisikshata Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jhajire Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sikshita Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jagire. Read please. Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisikshata Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jagire. Any ladies? Sahasra Yuga Paryante Uthayedam Sisikshata Marichi Mishra Rishaya Pranebhyo Aham Cha Jagire. Ladies, name? Sahasra 1000 Yuga 4.3 million years Paryante
at the end of the duration, uthaya, having expired, idam, this, sishikshata, desire to create again, Marichi Mishraha, rishis like Marichi, Rishaya, all the rishis, Pranebhya, out of his senses, Aham, I, Cha, also, Jagire, appeared. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. After 4,300,000 years, 4.3 trillion years, solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. The duration of a day in the life of Brahma is 4.32 trillion years, solar years. This is stated also in the Bhagavad Gita. So, for this period, Brahmaji rests in Yoga Nidra within the body of the Garbhadaksai Vishnu, the generator of Brahma. Thus, after the sleeping period of Brahma, when there is creation again by the will of the Lord, through the agency of Brahma, all the great rishis again appear from different parts of the transcendental body, and Narad also appears. This means that Narad appears in the same transcendental body just as a man awakes from sleep in the same body. Sri Narad is eternally free to move in all parts of the transcendental and material creations of the Almighty. He appears and disappears in his own transcendental body, which is without distinction of body and soul, unlike the conditioned beings. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Putale Srimate Tamal Krishna Goswami iti namne. तो ये श्रीमद् भागवतम का चर्चा नारद जी और व्यास देव जी का वार्तालाप है। और आप बैकग्राउंड तो जानते ही है कि व्यास देव जी आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग और सब ग्रंथों का रचना करने के बाद में वो असंतुष्ट थे, he was dissatisfied। तो उनके गुरु आते हैं, सर्वप्रथम उनके when you are troubled, एक मैसेज है स्क्रिप्चर्स का कि जब हमारे जीवन में गुरु होता है, गाइड होता है, तो whenever you are troubled, the guru is there to help you out। तो नारद जी आए, तो व्यासदेव जी फिर नारद जी को बताए कि इतना सब कुछ करने पर भी मैं डिससेटिस्फाइड हूं, और ये डिससेटिस्फैक्शन है, मैं नहीं जान सकता आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है। वो आपका हृदय में, आपके मन, आपके बुद्धि में वो आपको फीलिंग होता है कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। आर यू सेटिस्फाइड चैंटिंग हरे कृष्णा? आर यू सेटिस्फाइड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? आर यू सेटिस्फाइड बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ? आप प्रसाद पाके सेटिस्फाइड हो कि नहीं? तो ये जो अवस्था है, मैं बाहर से किसी को देख कर नहीं, किसी के चेहरे पे मैं पढ़ नहीं सकता कि यू लुक डिससेटिस्फाइड। तो शिष्य के काम है गुरु को अप्रोच करो, यू हैव टू अप्रोच गुरु, और अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है या व्हाटएवर, जो आपका डिसकंटेंटमेंट है, वो उसके साथ में बोलना। तो गुरु आपको फिर उसमें से गाइड करेगा, गुरु उसमें से आपको बाहर निकाले। गुरु का मतलब भी है आपको, गु मतलब कंटेमिनेशन, रू मतलब डिलीवर। तो गुरु के काम है आपके मलिनता से
मलिनता शरीर का हो सकता है, मलिनता मन का हो सकता है, मलिनता बुद्धि का भी हो सकता है? शरीर का मलिनता तो पाप में जीवन जिएंगे तो अशुद्ध है। मन का, व्हाट इज द कंटेमिनेशन ऑफ द माइंड? असत्संग और ये सब चीज बहुत बेसिक है, आप सभी लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मन का मलिनता है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। If you are undergoing these 6 things, that means the mind is contaminated. पीओडी प्रभुपाद जी इसमें नहीं गो थ्रू करते हैं। प्रभुपाद जी के मन में काम वासना, भोग वासना नहीं आता है, क्योंकि कृष्ण भक्ताराम यज्ञ तपसा और काम, क्रोध। प्रभुपाद जी को क्रोध क्यों होता है? When you have unfulfilled desire, काम, क्रोध, मद, मैडनेस। प्रभुपाद जी संसार के वस्तु के पीछे पागल नहीं है। काम, क्रोध, मद, मोह, वो मोहित भी नहीं है संसार के वस्तुओं के पीछे। और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अत्यधिक ग्रीड नहीं है। और मत्सर्य, मत्सर्य मीन्स Prabhupada is not envious of any living entity. Prabhupada is giving chance to everyone to be exposed to Krishna consciousness. क्यों हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस? जैसे घाम निकलता है तो कभी कभी व्यक्ति बीमार होता है, कुछ होता है, बोले थोड़ा बाहर जी घाम लग जाए, मतलब दे वांट टू डिराइव वार्मथ एंड बिकम बेटर। तो हम लोग के भी when we get exposed in Krishna consciousness, what is the result that is expected? We become pure devotees. कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो पवित्र भक्त बनने का मार्ग है, दूसरा कुछ नहीं। एक भक्त मुझे प्रश्न कर रहा है, मतलब कि मैं डिसिप्लिक सक्सेशन ये सब स्टडी करता हूँ, मुझे पता लगता है कि शुरू से लोग नारायण का, माधवाचार्य, ये सब आचार्य लोग नारायण विष्णु वर्शिप, चैतन्य महाप्रभु आया और कृष्ण के वर्शिप स्टैब्लिश कर दे। तो केवल पाप से छूटना है, संसार से मुक्त होना है, तो भगवान के अनेक नाम है, नाम नामकारी बहुधा, भगवान के अनेक अवतार हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र चैंट करते हैं पाप छुड़ाने के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ये दिया है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। पाप छुड़ाना है तो नाम अपराध से भी हो जाता है, नाम आभास से भी हो जाता है, नाम आभास से भी हो जाता है। कोई ध्यान पूर्वक ना चांट करो, केवल आपके रास्ते में जा रहे हो, कुछ अचानक से घटना हो गया, कृष्ण बोल दिया, उसे पाप धुल गया। लेकिन वैसा कृष्ण बोलने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कंस भी तो सभी दिशा में देखते हैं उसको कृष्ण दिखाई देता है, खाना में भी कृष्ण दिखाई देता है, प्रसाद हम लोग पाते हैं लेकिन कृष्ण वो देख रहा था प्रसाद में, भोजन में वो कृष्ण देख रहा था, हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, प्रसाद को खाया नहीं जाता है, प्रसाद की सेवा किया जाता है, प्रसाद सेवया, क्योंकि भगवान है इसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भक्ति जो है, मैं हमेशा, मेरा विचार ऐसा होता है अब कि मैं सोचता हूं कि मैं जितना उम्र का हो गया हूं उसके हिसाब से 10-15 साल और जीऊंगा, तो उसका मतलब होता है मेरे पास उतना ही समय है ये जो जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाना। आई हैव गॉट ओनली नेक्स्ट 10 years और 15 years टू अटेन लव ऑफ कृष्ण। जब लव ऑफ कृष्ण हो जाएगा तो कैसा हालत हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु गए अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास, बोले हे गोसाई ये कैसा मंत्र दे दिया है? तो बोला कि ये मंत्र जप करके मैं पागल हो गया हूं, मैं सब कुछ भूल गया हूं, केवल कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण। तो ईश्वरपुरी बोले ये मंत्र तुम पर काम कर दिया। और ये मंत्र जब काम कर दिया तो बोला क्या करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। बोला कि जब ये मंत्र काम कर दिया तब क्या करो, ये नहीं बोला ईश्वरपुरी कि वो मंत्र काम कर दिया, तुमको अश्रु गिरने लगा है, तुमको ये होने लगा वो होने लगा, वो ठीक तुम्हारा सफलता हो गया, जाओ बैठ जाओ। बोला जाओ नाचो गाओ भक्त संगे, गो एंड कीप इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। क्यों कीप इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? क्योंकि जब
जैसे आगे बढ़ रहा है, ढेर लकड़ियां साथ में बढ़ रही हैं, अगर उसमें जुटे रहोगे, उसमें जुटे रहोगे। चूल्हा में, आजकल तो गैस स्टोव में लोग भोजन बनाते हैं, गए जमाने में चूल्हे में भोजन बनता था। तो आग को कायम रखने के लिए या आग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन कौन लोग लकड़ी चूल्हा में खाना बनाया? माता जी आपको पता कैसे कैसे आग बढ़ता रहे और या तो आग को और भी प्रज्वलित करना हो तो क्या करना पड़ता है? लकड़ी जोड़ो, लकड़ी फूको, और क्या? ये प्रॉब्लम है। सब लोग सोचते हैं फूक फूक के हरे कृष्णा हो जाएंगे। फूकने से कुछ नहीं होगा। उससे भी करसीन भी छोड़ोगे तो ऐसे भरभरा के भरेगा, फिर खलास। इस पर मुझे याद आ गया, भक्ति चौधरी स्वामी महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था। महाराज बोले कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग भक्त संगत से दूर हो जाते हैं, हरे कृष्णा संस्था, इस्कॉन संस्था से अलग होके कुछ करना चाहते हैं। तो बोला एक भक्त पूछा, ये लोग अलग हो जाते हैं लेकिन इतना सफलता होता है, इतना बढ़ता है, इतना उनका भी हो जाता है। तो महाराज बोला उसका उदाहरण क्या है? जब एक पेड़ से एक डाली काट दिया जाए तो वो डाली में जो फल आदि लगे रहते हैं वो क्या होता है? जल्दी से पीला हो जाता ना। तो बाहर से देखेला आदमी क्या बोले? पक गया, बड़ा जल्दी पक गया। लेकिन वो फल के आप तोड़ के और उसको उपयोग करने का कोशिश करो तो वास्तव में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक तो उसमें मिठास आएगा ही नहीं, वो तो केवल तोड़ने से पक गया, पीला दिखने लगा है। तो उसमें खट्टापन तो रहेगा। और हम लोग देखते हैं जो संस्था से विमुख हो जाता है, कड़वाहट तो बढ़ जाता है, कड़वाहट तो बढ़ जाता है, पक्का है? और साथ साथ में क्या होता है? When you become disconnected, you start decaying, सड़ना शुरू हो जाता है। वो फल सड़ना शुरू हो जाता है। वो फल में फिर पक्वता जो है वो नहीं आता है। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण जो चूल्हे का उदाहरण मैं दे रहा हूं, फूंक मारने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी शायद और लकड़ी भी ना हो जोड़ने के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम लोग ये तो बहुत अच्छा इतने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी नहीं है। ये हमारे लिए काफी नहीं है। हमको हर एक साल प्रति साल सोचना चाहिए। हमारे हर एक संस्था का जो हर एक शाखा है, हर एक शाखा का एक लक्ष्य होना चाहिए। हाउ मेनी मोर डिवोटीज आर वी गेटिंग इनिशिएटेड? अगर इनिशिएटेड नहीं हो रहा है डिवोटी, भक्त नहीं बन रहा है, भक्त की संख्या नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। बिजनेस खोल के बैठा रहोगे, दुकान खोल, आप लोग हम लोग दुकान वाला जगह में भी आ गया है दुकान में खोल के बैठा गए, ग्राहक नहीं आएगा तो मतलब क्या है? दुकान सस्टेनेबल है? दुकान नहीं चलेगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाओगे, मतलब जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। तब ऐसे जरूरी है। तो आप बोल रहे हैं लकड़ी में और चूल्हे में और लकड़ी डालो, ठीक है, अगर रहेगा तो डालो तो आग बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? आग को बढ़ाना है तो क्या करो? सब लोग मिस कर रहे हो पॉइंट। माता जी को भी नहीं पता, आप लोग चूल्हे में खाना बना के पता नहीं है, और लकड़ी नहीं है, हौका भी नहीं जाए है। अगर नहीं, लकड़ी को और भीतर करना है। लकड़ी छितराने पड़ा रही, हवा मारो, फूंक मारो, बढ़ेगा आगे। चूल्हा में लकड़ी को अंदर करना होता है। भले दुइये लकड़ी रही लेकिन फिर भी सबको आगे के बढ़ाए और खाना बनाए। इसका मतलब है हम हर एक भक्त ये कृष्ण भावनामृत के गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। You have to push the
वो डीपा इनटू द स्टोव, तो वो बर बर के जब खलास भी होता है तो और भी आग कायम रहेगा। तबे से हम लोग पर्सनली हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन का आध्यात्मिक प्रगति का माप करो। ये माप जो है इसको कुछ कॉन्फोक्ट भी नहीं करना है, अपने मन के कल्पना से बनाना भी नहीं है। इसका माप हमारे नाना शास्त्र विचार नेक निपुणों सद्धर्म संस्थापक जो सद गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स है, वो हम लोग के मेजरमेंट रूला दे दिया है, मेजरिंग टेप दे दिया है। मेजरिंग टेप क्या है? अधो श्रद्धा। व्यक्ति को थोड़ा से श्रद्धा होता है आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, भगवान की ओर, तो अधो श्रद्धा तथा साधु संग। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एवरी टाउन एंड विलेज, हम लोग के संस्था का शाखा जो है, सत्संग जो है, खाली मंदिर नहीं, टेम्पल्स, सेंटर्स, गैदरिंग्स, जो सत्संग है वो हमेशा इसको बनाए रखना चाहिए। तो अधो श्रद्धा तथा साधु संग, जब साधु संग में जाओगे तो भजन क्रिया। व्हाट इज भजन क्रिया? नौदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और भजन क्रिया के पाठ क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शना। ये भजन क्रिया के पाठ है। तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर नापे, 1 इंच नापे, 2 इंच नापे, अधो श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया, तो भजन क्रिया से आगे अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निकलना चाहिए। अनर्थ क्या है? काम क्रोध मत बोलो मत मत्सर्य। अनर्थ क्या है? हम भुक्ता है, भुक्तराम यज्ञ तपसाम को समझ नहीं पाना, ये अनर्थ है। जब ये अनर्थ निकलेगा तो फिर क्या होगा? निष्ठा, then becomes firm faith, then becomes firm faith। तो firm faith के बाद में रुचि, then you develop taste in Krishna consciousness। और फिर अभी तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के टेस्ट तो छोड़ो, अभी प्रसाद में हमारा टेस्ट नहीं डेवलप हुआ है। बीच बीच में हम लोग कुछ और भी दमक देते हैं। प्रसाद का टेस्ट, कल हम लोग भगवत गीता में दिकेश प्रभु के घर पे पढ़े थे ना, कि चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद बोला, चैतन्य महाप्रभु हमको बोला है हरिनाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम जप करना और अर्च विग्रहों को समर्पित उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करना। ओनली ईट प्रसादम, नथिंग एल्स, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। तो अभी तो हमारा प्रसाद में ही निष्ठा नहीं हुआ है। वी ऑल लाइक प्रसादम, बट अभी निष्ठा नहीं हुआ है, फर्म फेथ इन प्रसादम नहीं हुआ है। अगर फर्म फेथ इन प्रसादम हो जाए तो वी विल नॉट ईट एनीथिंग अनऑफर्ड। तो निष्ठा, तो निष्ठा, फिर रुचि, रुचि फिर यही में टेस्ट लगेगा। फिर रुचि के बाद में आसक्ति, देन यू बिकम अटैच्ड, देन यू बिकम अटैच्ड, यू कैन नॉट लिव विदाउट। जब कोई चीज के बिना नहीं रह पावा जाए तो कौन चीज है? आदमी कौन चीज करे? एक छोटा लड़का रहे पर मैया पक बिना नहीं रह पाए, मैया अपा आंखी से सामने से चला जाए तब लड़का कौन सी करे? रोए लगे, रोए लगे। अभी हम लोग के तो 16 माला जप करे वास्ते रोई आवे, 16 माला जप करे के इच्छा से रोई नहीं आवे हम लोग के। तो आसक्ति, अटैचमेंट हो जाएगा, देन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और आसक्ति, फिर भाव, भाव, और भाव के स्तर पे जाके नहीं सोचना हम जंगल से पार कर दिया है। जंगल में जाके भरत महाराज अटक गए। भरत महाराज दिया के अटैचमेंट डेवलप कर ली, और भाव के बाद में प्रेम। 21 स्टेप पीछे रहा भरत महाराज, केवल एक और कदम पीछे रहा कृष्ण प्रेम से। लेकिन वहां तक भी रिस्क है, वहां तक भी रिस्क है। तो हाउ अटेंटिव वी हैव टू बी, हाउ अटेंटिव वी हैव टू बी। तो जब, इसीलिए जब गुरु होता है तो गुरु या गाइड्स है, मुझे एक और एक डिवोटी अभी हाल में बोल रहा था
उनको बारंबार कुछ इश्यू हो जाता है, भक्तों से इश्यू हो जाता है। तो मैं उसको बोला कि अच्छा आपका गाइड कौन है, हु इज योर शिक्षक, गुरु, और मैं भी गुरु बोलेंगे तो बहुत हेवी लग जाता है, मतलब कंप्लीट सरेंडर के बात हो जाता है, लेकिन कौन तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड है जिससे आप डिस्टर्ब माइंड यू कैन शेयर विद समवन, या व्हाट आई शुड डू, किसको पूछता है? तो बोला ऐसा तो कोई नहीं है। जब ऐसा कोई नहीं है देन हाउ कैन यू एक्सिक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस? तो बोला मैं प्रभुपाद जी के गाइडेंस लेता हूं। तो आप प्रभुपाद जी से बोलिए कि प्रभुपाद जी आई एम वेरी डिस्टर्ब, प्रभुदानंद प्रभु हैज सेड दिस टू मी। तो फिर प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे? अगर हम लोग बोलेंगे कि केवल हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, किताबों से गाइडेंस लेंगे, ये तो सुप्रीम गाइडेंस है, लेकिन हाउ डू यू मेक इट टेलर मेक इट टू द सिचुएशन, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस पर सिचुएशन सोल्यूशन होता है। जैसे टाइम प्लेस सर्कमस्टांस जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोला, भक्तिविनोद ठाकुर बोला है जो 64 माला नहीं करता वो वैष्णव है ही नहीं, लेकिन भक्त लोग नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी बोला अच्छा 32 करो, 32 भी भक्त लोग नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी बोले 16 से कम नहीं करो। लेकिन अगर हम लोग आज बोलना चाहेंगे कि चलो प्रभुपाद जी बोला 16 से कम नहीं, तो फिर हम लोग बोलेंगे मेरे पास बच्चा है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ये है वो है, तो बोलेगा मैं तो नहीं कर पाता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ। लेडीज बोलेंगी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो लेडीज क्या बोलेंगी? मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं दीक्षा नहीं ले सकती, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू चांट 16 राउंड। तो जब जीवन में एक मार्ग प्रदर्शक व्यक्ति होता है तो वो आपको सोल्यूशन देता है। 16 माला आप कैसे कर सकते हो? सुबह आधा घंटा पहले उठ जाओ, जितना समय उठते उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ, 4 माला हो जाएगा। फिर सब कुछ सुबह का तैयार करके ये करके फिर आप अगर काम पे जा रहे हो तो रास्ते में जाते जाते 4 माला कर लो, या काम पे नहीं जाते हो तो उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाए फिर 4 माला कर लो। फिर उसके बाद में आप अपना जो भी करते हैं करो, फिर मध्याह्न तक या शाम के समय 4 माला कर लो, 12 हो गया। फिर आप रात को सोने से पहले 4 माला कर लो, 16 माला हो गया। तो आपको प्रैक्टिकल गाइड मिल गया। नहीं तो मैं सोच के बैठा हूँ प्रभुपाद जी बोला लेस देन 16 नहीं करना है, 16 करना है, तो मैं सुबह तो 16 में मैं सोच समझ के बैठ जाऊं कि वो 16 एक ही बार माला पकड़ूं तो उसी समय 16 कर दूं, तो हमारे शेड्यूल में फिट नहीं होता है। फिट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? शेड्यूल नहीं चेंज करते हैं, माला छोड़ देते हैं। तो तभी से हम लोग के जीवन में एक गाइडेंस चाहिए, तभी से गाइडेंस चाहिए। और विशेष करके मैं देख रहा हूँ लास्ट वीक रामचंद्र प्रभु भी क्लास दे रहे थे, मैंने सुना था, इसके बारे में चर्चा हो रहा, और सभी भक्त भी हमारे यही सब चर्चा में लगे हुए। अभी हमारा फेसबुक पे ऋत्विकवाद और इस्कॉन का ये सब बहुत जोर तोड़ से चल रहा है। द अदर डे मैंने देखा रोहिणी सूत्र प्रभु यू शेयर्ड वन फेसबुक पोस्टिंग, तो मैं वो फेसबुक पोस्टिंग दिया दैट एक्चुअली दैट फेसबुक पोस्टिंग वाज क्रिटिसाइजिंग तमाल कृष्ण महाराज, इट वाज अपराध टू गुरु। तो मैं बोला हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग तैयार नहीं है कि हम लोग असेस कर पाए क्या सही क्या गलत है। इसीलिए बहुत जरूरी है, आप फेसबुक पे सुनते हैं, ये महाराज का सुनते हैं, वो महाराज का सुनते हैं, ये देवी का सुनते हैं, उस देवी का सुनते हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद अनुगत इनसे बाहर जाएंगे, हम लोग के परिवार बिगड़ जाएगा। जैसे अभी सब लोग समझते हैं कि हम लोग ठीक है, हम लोग प्रभुपाद जी को, हम लोग को लगता है कि कोई गुरु लायक नहीं है, हम लोग प्रभुपाद के फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी को कैसे फॉलो करेंगे? प्रभुपाद जी बारंबार, प्रभुपाद जी के जितना बुक्स, प्रभुपाद जी 60 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स जो लिखा है, प्रभुपाद जी बारंबार बोला है कि एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु शिष्य के पीढ़ी से ये ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण बोले तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग से कोई उत्तम अधिकारी नहीं है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोग कोई मध्यम अधिकारी भी नहीं है? लेकिन आप लोग संकीर्तन में जाते हैं, आप लोग फ्राइडे को ट्यूसडे को संकीर्तन करते हैं, आप लोग थर्सडे को करते हैं। डज योर डूइंग हरिनाम कैरी एनी वैल्यू? आर यू अ प्योर डिवोटी? आर यू अ प्योर डिवोटी? कोई है यहाँ पे हाथ उठाए बोले मैं प्योर डिवोटी हूं? कोई नहीं बोलता प्योर डिवोटी। देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग हरिनाम? तो क्या फायदा आपके हरिनाम में?
आपने सब प्रभुपाद का बुक पढ़ा है, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई एम श्योर शानिया यू मस्ट हैव गिवन वन बुक टू समवन ना, बट आई एम श्योर एट द सेम टाइम यू डोंट फील दैट आई एम अ डिवोटी, आई एम ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। देन आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द यूज ऑफ यू गिविंग बुक टू समवन एल्स? आप तो डिवोटी है नहीं, दूसरे को कह देता है। यू फॉलो माई पॉइंट? हम लोग तो है नहीं तो दूसरे के क्या करेगा? मैं टाउन में खड़ा होकर हरिनाम गाऊंगा, मैं तो खुद भक्त हूं नहीं, मैं प्योर डिवोटी हूं नहीं, तो कैसे दूसरे के फायदा हो? फायदा होगा कि नहीं होगा? दूसरे का होगा। क्यों होगा? वी may not be perfect, the process is perfect. Process is evam parampara praptam. You have to go in the line of guru and disciple, disciplic succession. I may not be a perfect guru. आप जब भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, आप उतना क्षमता तो रखते हैं, जितना आप है उतना तक किसी को उठा सकते हैं। सही बात कि नहीं? यू कैन ओनली गिव चैरिटी द अमाउंट यू हैव। आपको दान देना है, आपके पास $1000 है, आप $900 दे सकता है, या $1000 100% भी दे सकता है, लेकिन कैन यू गिव $1 million? आपके पास तो है नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि ना, तुम्हारा दान देना बेकार है। इज इट गोइंग टू वर्क? ही इज गिवन 100%, कृष्ण has accepted it। तो हम लोग को ये देखो, मैं उस दिन शेयर किया था, श्रवणिया माता जी मेरे साथ में चर्चा कर रही थी, शी इज डूइंग भक्ति वैभव कोर्स। तो बोला कि एक 4th कैंटो, कोई कैंटो के डिस्कशन में बताया कि एक्सप्लेन किया गया है, देखो संसार के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग रिबेलियस है। हम लोग क्या है? हम लोग के रिबेलियन कहां शुरू हुआ? हम लोग भगवान के रिबेल कर दिया है। तो आप हमारी बात नहीं सुनेगा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो छोटा बात है। हम लोग तो भगवान जो हम लोग के क्रिएटर है, हम लोग उसकी बात नहीं सुना। जीसस को के फादर इन हेवन बोला डोंट ईट दिस एप्पल, एडम ने फिर भी खा लिया। तो रिबेलियस नेचर तो हम लोग के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जीव जो है वो भगवान के अंश है, और अंश हेतु उसमें सेवा का स्वभाव है। मानो बस यही रकम हम लोग के रिबेलियसपन है। तो श्रीमद् भगवत गीता का मैंने उस दिन लास्ट वीक फ्राइडे नाववा में पढ़ा था। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। कृष्ण इज डायरेक्टली टेलिंग, ठीक है आप मेरा मत मानो, किसी और का नहीं मानो, कृष्ण का तो मानोगे, कृष्ण को तो पूछते हो। तो कृष्ण कहते हैं 3rd चैप्टर वर्स नंबर 40, 40 नहीं, वर्स नंबर 41 आई थिंक, 41 में भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजाहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization। बोला कि इसका क्या करो? खात्मा करो, स्ले करो। जैसे हमारे मच्छर बैठ जाए तो हम लोग इसे उड़ा देते हैं, कोई लोग क्या करते हैं? मच्छर को मार देते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि स्ले करो, इसको मार डालो, इसको खत्म कर दो। इसको कैसे खत्म होगा बताया गया है इन द वेरी बिगिनिंग। खाली बिगिनिंग नहीं, एकदम शुरुआत में ही इसका क्या करो? कर्ब करो, इंद्र संयम करो। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। मन बोले अरे ये भक्त लोग तो ऐसा करते हैं, हम इनसे नहीं, इनके साथ में नहीं काम करेंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मन को कंट्रोल करो। इस्कॉन संस्था परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, और दूसरा ये प्रभुपाद जी का स्वयं देह है। प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन इज माय बॉडी।
ISKCON इज माई बॉडी। प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त गया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद जी मैं इसके साथ में नहीं काम कर सकता हूं, आप मुझे कोई और सेवा बताइए। तो प्रभुपाद जी बोला तुम इसके साथ में काम करो। प्रभुपाद को बोलेंगे, फिर प्रभुपाद के बात नहीं सुनेंगे। पूरा ग्रंथ में प्रभुपाद जी बोला है कि चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश, एवरीवन विल बिकम। अब वो प्रभुपाद जी को वो बजाज इंडस्ट्रीज वाला जो सेठ था वो प्रभुपाद जी को बोला प्रभुपाद जी तुम अकेले ये संस्था को बनाए हो, ये संस्था आगे कैसे चलेगा, किसको आप बनाओगे अगवा करने के लिए। प्रभुपाद जी बोला ये सब मिलकर चलाएंगे, ये संस्था सब मिलकर चलाएंगे। कोई परफेक्ट नहीं है। कोई व्यक्ति है जो यहाँ बैठा है अपने आप को परफेक्ट बोल सकता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, आई मेक सो मेनी मिस्टेक्स। लेकिन ये प्रोसेस परफेक्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें लगे रहने से परफेक्शन का रंग चढ़ जाएगा, परफेक्शन का रंग आ जाएगा। और ये बहुत ही उत्तम और बढ़िया उदाहरण दिया भक्ति चारू महाराज कि कट जाओगे बरोगे भी, आगे बुतने से पहले भरभराए के बरे हैं। तो हम लोग जब ये संस्था प्रभुपाद जी का शरण, हमारे सत्संग डिवोटीज का संग छोड़ोगे तो लगेगा कि मैं तो 7वें आसमान पे चढ़ गया हूं, है? फिर हर एक तारा टूट के गिरता है? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पहला पहल तो हम लोग ये देखो कि क्या मैं अपना 16 माला कर पाता हूं कि नहीं। 16 माला कर पाता हूं कि नहीं। मैं जब ये बोलता हूं तो मैं ये नहीं मैं बोलता हूं अपने अपने दिल में, सब लोग पूछो अपने आप से एम आई चांटिंग माई 16 राउंड्स। बोले हाँ। कैसे चैन करते हो? आज वाला बच जाता है तो कल कर देता हूं। अरे 24 आवर्स में 16 माला नहीं होता है? हम तो इसे लपेट लपेट के बटर के तब साल में डिवाइड कर देता है कि हाँ 16 एवरी डे हो जाए। हर एक क्षण के लिए, हर एक रोज के लिए ये होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो आपका पड़ोसी क्या कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने आप को सुधारना चाहिए। आपके पड़ोसी के बल पे भगवान के धाम जाना है कि अब भगवान आपका देखेगा आपने क्या किया है? मासिंगा के हृदय शुद्ध हो जाए, मैं भगवान के धाम नहीं जाने वाला, ये तो तुम्हारा शुद्धि है तो भगवान तुम्हें स्वीकारेंगे। और तो हमको ये सोचना चाहिए। मैं ये चर्चा किया था कि जितना समय बचा है उस समय में मुझे क्या करना है, ये सोचना चाहिए। और आज का जो श्लोक था भागवतम का, मैं ये सोचकर आश्चर्य हो रहा हूं कि देखो ये इसमें बताया गया 4.3 ट्रिलियन 16 ईयर्स। नारद जी क्या बोल रहे हैं? जब भगवान ब्रह्मा जी पुनर्जागृत अवस्था में आते हैं तो फिर सब कुछ उत्पादित होता है, लेकिन नारद जी वही शरीर में सब टाइम रहते हैं। तो ठीक है, सब कोई ये बात पकड़ेगा। मैं तो ये बात पर ध्यान कर रहा हूं कि अगर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सो गए और हम लोग भगवान के धाम इस टाइम में नहीं गए तो 4.3 ट्रिलियन 16 ईयर्स बाद फिर जगह के मौका लगी। याद करना, बात पकड़े मैं क्या बोल रहा हूं? ये श्लोक में बोला कि नेक्स्ट क्रिएशन कब होता है? नारद जी बताते हैं नेक्स्ट क्रिएशन कब होता है? 4.3 ट्रिलियन 16 ईयर्स के बाद में ब्रह्मा जी जागे, तब नारद बोले तब मैं फिर से हुआ, जैसे दूसरा मारी सब ऋषि लोग किया तब मैं फिर से। लेकिन नारद का स्पेशलिटी क्या है? नारद यही शरीर से उड़ जाते हैं। जैसे बोले एक व्यक्ति सोया हुआ हो, जब स्वप्न से बाहर निकले तो उसका वही शरीर होता है। तो ये तो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, ये तो नारद का ट्रांसेंडेंटल नेचर है। इससे सीख मैं क्या सोचता हूं कि सीख होना चाहिए कि वी हैव टू बिकम अटेन द ट्रांसेंडेंटल नेचर। और भगवान कहते हैं कि हम लोग भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर कैसे अचीव करेंगे? भगवद गीता में जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्व से भगवान का प्राकट्य और लीलाओं को समझ जाएगा,
हम लोग यहाँ पे सब कोई बैठे हैं, अपने अपने दिल में ये प्रश्न पूछो कि क्या मैं भगवान के जन्म और लीलाओं को तत्व से समझ गया हूं? हाँ? अपने दिल में हाथ उठाओ, किसका हाथ ऐसा जाता है? ऐसे क्लास में बैठे होते हैं, टीचर बोले आंसर जानो तो हाथ उठाओ, तो जो लड़का नहीं जाने तो ऐसे करे कि कोई दूसरा देखे तो जाने कि हाँ आंसर जाने है, लेकिन मन में सोचे कहीं टीचर हमें नहीं बोल दे बिकॉज हम आंसर नहीं जानता है। स्पिरिचुअल लाइफ हमारा ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोग हाथ उठाए हैं, कंठी पहरे, तिलक पहरे है, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे करता है बिकॉज हम लोग अभी तत्व से जाना नहीं है। तो प्लीज फोकस योर लाइफ ऑन दिस। अभी आप सोशल मीडिया पे जाके ये ऋत्विक है, ये है, वो सब छोड़ो। ये सब को समझना है तो सबसे पहले प्रभुपाद के बुक उठाओ, और जो भी प्रभुपाद जी 60 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स जो सब किया है उसको आर पार पढ़ डालो। कौन कौन भगवत गीता पढ़ दिया है कवर टू कवर? 1 2 3 4 5 लोग केवल। दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। जब आप नहीं पढ़े हैं प्रभुपाद जी के किताबों को तो फिर आप ये मतलब देन यू डोंट हैव द राइट टू बी पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन। ये समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए। हम लोग के कोई के जजमेंट करे के कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग तत्व खुद नहीं समझा है। तो अपने आप में जो समझ में आए वो अपने आप में हम समझे, और जो नहीं समझ में आए तो फिर गुरु के पास जाके पूछे। व्यास देव जी गुरु के पास गए, नारद जी के पास गए, बोला कि कभी कभी हमें लोग ऐसे होता है, हम लोग बोलते हैं हमें तो समझ में नहीं आया कौन सी करो, हमें तो समझ में नहीं आई इसके संगे कौन सी करिए। अब ऐसा कंफ्यूजन रहा व्यास देव जी के जब नारद के पास गए। गुरु निवारण करे जाने है? क्यों निवारण करे जाने हैं? क्योंकि वो कृष्ण के अपन हृदय में साक्षात अनुभव करे हैं। वो कहे निवारण करे जाने हैं बिकॉज कृष्ण इज स्पीकिंग। आई हैव सीन मेनी डिवोटीज, कभी कभी वो लोग इतना अमेजिंग जवाब दे देंगे आपको कि आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप सोचेंगे हाउ डज इट? द मोर ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम यू आर, द मोर कृष्ण स्पीक्स थ्रू यू। आप जितना ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम रहोगे, जैसे एक ये चश्मा मेरा, ये चश्मा मेरा, ये ग्लासेस जो है वो जितना ट्रांसपेरेंट रहेगा मैं उतना सभी कुछ यथारूप देख सकता हूं। लेकिन चश्मा बनवाने के लगे जाओ तो आदमी बोली कि यूवी रेज वाला कर लो, थोड़ा टिंट, लाइट टिंट कर लो, हाफ टिंट, हाफ ऐसे कर लो। तो जो व्यक्ति वो चश्मा को लगा कर देखता है, उस जो भी वस्तु को देखता है उसमें वो टिंट आता है कि नहीं आता है? तो हम लोग अगर इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, दूसरे को जजमेंट करने का टिंट लगाएंगे तो टिंटेड दिखाई देगा। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल पाथ क्या है? बाय डिंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। भगा हम लोग ज्ञान के मार्ग से देखोगे। भगवान को कैसे देख पाओगे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना। बोले इसमें आंखों में जब प्रेम का काजल लगा हुआ होगा, प्रेम का काजल लगा हुआ होगा। जैसे कभी कभी लोग दिवाली में काजल पारते हैं ना, तो फिर उसको आंख में लगाते हैं। तो जब काजल आप लगाते हो तो क्योंकि उसमें घी लगा होता है या कोई तेल वगैरह लगाता है तो आंख को जलाने लगता है कि नहीं? तो इससे हम लोग के हृदय में जब प्रेम नहीं होगा तो आंख में प्रेम का अंजन कैसे लगेगा? जब प्रेम का अंजन नहीं लगेगा, अगर आंख में आप विक्स लगा लो तो आंख ऐसे बराबर नहीं खुलेगा। ऐसे से करोगे तो ऐसे करोगे तो धुमिल धुमिल दिखाई देगा। तो द आईज हैव टू बी अनॉइंटेड विद लव ऑफ कृष्णा। तो ये अनॉइंटमेंट आएगा कैसे? जब हम प्रभुपाद जी के वी वांट टू फॉलो। प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग डिवोटी नहीं बनते। ये फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता है।
मैं भी आज जो बोल रहा हूं, मैं जब व्यासासन पे बैठता हूं, अगर कुछ है, अगर कोई रिस्पेक्ट मुझे दे रहा है, कोई मुझे सुनना पसंद करता है, वो केवल यही है कि मैं प्रभुपाद के ज्ञान प्राप्त किया हूं, तभी कोई सुन रहा है। नहीं तो हमारी बात कोई नहीं मांगे सुने। हैं? आज हम लोग हैं? आपको मान सम्मान मिल रहा है, सब कुछ क्यों मिल रहा है? प्रभुपाद का दिया हुआ कंठी है, प्रभुपाद का दिया हुआ तिलक है, प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान है? हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो केवल पाप का गठरी है। कभी कभी भक्तों संतों के समाज में भी आ जाते हैं, तो भी अपना जो पाप का गठरी है, काम क्रोध मद मोह, वो लेकर आते हैं, वो फिर दूसरे पे इंपोज कर देते हैं, दूसरे के ऊपर उजल देते हैं। तो हम लोग के ये इतना ग्रेट चांस मिला है, 4.3 मिलियन 16 इयर्स में ये चांस मिला है हम लोग के कृष्णा कॉन्शियसनेस में। Therefore, please don't waste it on anything else. There's no time to waste it on anything else. वो जिसके काम वो जाने, हमारा काम है अपन आपके बचाओ। हम अपन आपके बचाएगा, आप अपन आपके बचाएगा, आप अपन आपके बचाएगा, आप हम लोग सबको इन जब बचाएगा तो हम लोग के भव सागर के सागर में ये जो मनुष्य नौका मिला है, जब हम लोग सबको इन खेवा मारेगा तो थोड़ा हम लोगन के यात्रा जो है, मेहनत जो है, थोड़ा इजी हो जाए, हम लोग के इजी हो जाए। मुझे याद आता है तमाल कृष्ण महाराज बोलते थे, द बेस्ट गुरु दक्षिण यू कैन गिव टू मी एज योर स्पिरिचुअल मास्टर इज टू बिकम अ पक्का डिवोटी। पक्का डिवोटी मतलब गुरु के पीछे घसीटा मत बन जाओ। डोंट पुट प्रेशर ऑन हिम कि वो हम लोग के खींचे में उसके ताकत चला जाए। गुरु एक ऐसा भक्त है जो भगवान से नियुक्त है, भगवान का शक्ति प्राप्त किया है, भगवान उसको एम्पावर किया है टू सेव द फॉलन कंडीशन सोल्स। तो हम लोग के तो बचा लिया, हम लोग के मार्गदर्शन करा दिया है, तो हम लोग लग जाओ और लोगों को भी मार्गदर्शन कराने। जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम जितना पानी में होंगे, भगवान को जितना शरणागत होंगे, भगवान उसी प्रकार से आदान प्रदान करेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हम सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगा दिया है। हम भी प्रचार करेंगे, हम भी हरिनाम करेंगे, हम भी प्रसाद बना के बांटेंगे, उसका असर दूसरे पर जाएगा, उतना ही जाएगा जितना आप में है, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। आप भोजन बना रहे हो, जो स्मरण से बना रहे हो, जितना आपका भक्ति है उतने वो भोजन में आएगा। तब ऐसे कभी कभी हम लोग कोई प्रसाद बनाता है, आदमी उसको खाता है, आदमी बोले दिस इज नेक्टर। क्यों नेक्टर? क्योंकि उस भक्त के हृदय का प्रेम उसमें चला गया। कभी कभी कोई प्रसाद बनाता है, आज वो जमा नहीं, क्योंकि बनाने वाले सोच कहां से हमारे पारी आई गए, अभी तो महंगाई के टाइम में कुछ मिले भी नहीं है। प्रेम से भगवान कहते हैं प्रेम। तो प्रेम को डेवलप करने के लिए वी हैव टू फॉलो द वैदी भक्ति। उस दिन वेदव्यास महाराज का एक बहुत सुंदर पोस्टिंग आया था। महाराज बोला सभी को रागानुग भक्ति पर आना है। रागानुग भक्ति पे आएंगे जब हम वैदी भक्ति में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जब हम लोग अपना 16 राउंड एक्सटेटिकली चैंट कर पाएंगे, जब हम 4 नियमों का पालन बिना कोई बल लगाए उसको पालन कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम लोग सोचेंगे कि कंठी माला पहिरा है, कंठी माला नहीं पहिरा देता तो टेस्ट कर लेता, मतलब अभी मन में पछतावा है, मतलब इट्स नॉट नेचुरल फॉर अस। लेकिन ये कंठी माला हमको बचा रहा है, ये तवीज है, हम लोग को बचा रहा है, कवच है, हमको पाप करने से बचा लिया। तो इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉटन इन सच अ लॉन्ग टाइम, एंड मैं तो बोलूंगा आई एम कन्विंस्ड नॉट टू वेस्ट इट। मैं नहीं इसको हाथ से जाने देना चाहता हूं। प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं इसी जन्म में ही हम लोग के भगवान के सामने आना है, और रिबेलियस हम लोग के नेचर है, तो भगवान कृष्ण बोले कि शुरू से ही इसके कंट्रोल में। तब ऐसे ये कभी कभी गलत नहीं है कि कभी कभी कोई भक्त आता है, शायद थोड़ा कम समझता है, लेकिन वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज वेरी नाइस, वी शुड एनकरेज, बिकॉज दिस इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कर्व द सेंसेस। वो शरणागत हो रहा है, उसका पार लग जाएगा। जब व्यक्ति शरणागत ही ना हो, परिपातेन परिप्रश्नेन
सेवया जब नहीं होगा तो तत्वदर्शिना कैसे होगा? जब तत्वदर्शिना नहीं होगा तो जन्म कर्म च में दिव्यम कैसे होगा? हाँ, कभी कभी बैठो और लॉजिकली सोचो इसके बारे में। कभी कभी बैठो शांति से, बुक पेन लेके और अपना स्पिरिचुअल स्टडी का, अपन स्पिरिचुअल लाइफ का प्लान बनाओ, मन में विचार करो। ठीक है, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे लिखा है प्योर डिवोटी बनो, फिर खोजो प्योर डिवोटी कैसे बनेगा, उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिर वो उसमें क्या क्या प्रोसेस है उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वैसे तोड़ तोड़ के आप अपने आप पे आ जाओगे कि अच्छा अभी मैं कहां पर हूं, मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सब डिवोटी को करना चाहिए, केवल कथाकारी से नहीं चलेगा। कल आप आएंगे, कथा सुनेंगे, वाह वाह ताली बजाएंगे, प्रसाद लेंगे, ऐसे नहीं। हर एक व्यक्ति को स्टडी करना। प्रभुपाद जी बोला, इफ आई हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट माय डिसाइपल्स इज दे डोंट रीड माय बुक्स। वो प्रभुपाद जी जब प्राण त्याग रहे थे तो वो आए वृंदावन में, आए कुछ साधु लोगन, तो प्रभुपाद जी को बोला कि ये तुम्हारे चेला लोगन जो है वो आचमन कैसे करो नहीं जानते हैं, किस हाथ से खाना खाओ नहीं जानते, कैसे बैठो नहीं जानते, ये सब नहीं जानते। प्रभुपाद जी बोला, आई नो। जब वो पूरा कंप्लेन सब कर दिया सब डिवोटी के बारे में, तो प्रभुपाद जी बोला, परंतु मेरे भक्त जो है, मैं जो कह देता हूं वो करने पर अपना जान निछावर कर देते हैं। तो जान निछावर मतलब नहीं कि केवल अपना सब प्रॉपर्टी बेच के मंदिर बनाया तो हम जान निछावर कर दिया है। अरे प्रभुपाद जी बोला, ये जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी बोला 16 माला करना है। प्रभुपाद जी बोला मेरे ग्रंथों को पढ़ना है। अरे कोई व्यक्ति इसी में जान निछावर कर दो कि मैं प्रभुपाद जी का बुक पूरा भागवतम जो वॉल्यूम्स 80-60 वॉल्यूम्स जो प्रभुपाद जी लिखा है, मैं मरने से पहले सब पढ़ लेना चाहता हूं। कब मरोगे पता तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान लगाओ, 5 साल, 10 साल, 15 साल जियोगे तो। मैं सबको प्रार्थना करता हूं, सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ कलयुग इज फेसबुक, सोशल मीडिया। अगर जितना कम हो सके इस पे रहो तो अच्छा है, जितना कम इस पे इंटरेक्ट कर सको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गाबज है उसको एकदम पुश करके लाइन अप कर देता है, एक के बाद एक, रील के बाद रील, ये सब देख देख के वी आर इन सो मच डिस्ट्रेस। इतना दुख में हम लोग हैं, भगवान से दूर होके हम लोग भगवान से जुड़ो भाई। हम लोग कहाँ और प्रॉब्लम करता है, हम लोग के तो प्रॉब्लम वैसे कमती नहीं है। बीमारी शरीर के प्रॉब्लम है, मन के प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, सब कुछ हम लोग के प्रॉब्लम है, उसमें और कहाँ लाइक ऋत्विक ढकेल ले जाओ। हमारे के टाइम नहीं है सब चीज के। वी जस्ट वांट टू बी वेरी सिंपल। प्रभुपाद जी की कृपा से मिल गया है 4.3 ट्रिलियन 16 इयर्स में एक अवसर मिल गया है। 4.3 बिलियन इयर्स फिर भी बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। तो इतना समय में हम लोग अगर हम लोग भगवान पर फोकस कर लेंगे तो हमारा मन जो है वो सफलता प्राप्त कर लेगा। तो लेट अस डू दैट। और साथ साथ में हम लोग के जो संस्था है, आई थिंक यू नो ये अच्छा फोरम है, आई शुड लेट यू नो। हम लोग के संस्था फिजी में इतना साल से चल रहा है और अलग अलग केंद्र हैं, प्रीचिंग सेंटर्स है, टेम्पल्स है, लेकिन हम लोग कभी आज तक फिजी में से ऑर्गेनाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इस पर काम किया गया है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑफ फिजी, ये संस्थान जो है इसको रिलीजियस बॉडीज एक्ट के नीचे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और महाराज हमारे जीबीसी हैं वीर कृष्ण महाराज, महाराज ने कुछ सीनियर डिवोटीज के राय लेकर एक नेशनल बॉडी एस्टेब्लिश किया है, इसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट, जो सभी यात्राओं को देखेगा। और विशेष करके अभी के टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा जो फिलॉसफी है या जो प्रभुपाद जी का टीचिंग्स है इसको कबाड़ा बनाया जा रहा है, इधर डायरेक्शन में वो मैं समझ गया, सभी लोग प्रभुपाद को समझ गए, अपने अपने ढंग से समझ गए। तो हमको वो सबको संगठन में ला के प्रभुपाद जी के टीचिंग्स के अनुसार ये संस्था को चलाना है। तो ये एस्टेब्लिश किया गया है, ये इसका अनाउंसमेंट वगैरह आएगा, ये सब होगा। लेकिन आई वांट द डिवोटीज टू नो वी हैव टू बी
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल मैटर्स है वी विल सॉल्व इट वन एट अ टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सोच रहा था ना, सुमुखा प्रभु इतना देरी से फाइंड आउट कर रहा था 4.3 बिलियन है 4.3 ट्रिलियन है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं करता, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई वांट टू गो बैक टू गॉड। So whilst you are correct Sumukha Prabhu, but I'm saying the point is let us not get deviated. I think we should just do, क्या होता है हम लोग भक्त लोग कभी कभी टेक, मैं personally I'm not very much in favor of studying too many books also. I just want to fulfill my life with Prabhupada's books. उतना ही समझ में आ जाए बस, मुझे माँ झुआ भर के बुक पढ़ के ये वो वहाँ मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। I think the simplicity with which we deal with things, I'm more concerned about delivering myself. और जब मैं डिलीवर होऊंगा या आप देखेंगे कि मैं कुछ प्रगति कर रहा हूँ, if it inspires you then you can follow, if you doesn't get inspired don't worry about it. Don't become conscious of me, you be conscious of Krishna. Don't become, ये मत सोचने लोग कि विश्वनाथ ऐसा है, विश्वनाथ ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। स्मरणम त्यज अंते कलेवरम, नहीं, कृष्ण बोला है अंत काले चा मां। कृष्ण नहीं बोला अर्जुन को कि लेट अस फाइट कुंज बोले जय राम अनुस्मर युद्ध चा, ऐसे नहीं बोला कृष्ण, कृष्ण बोला माम अनुस्मर। दिस इज वेरी मैं सोचता हूँ कि ऑल इन ऑल यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई। दुनिया के इशू क्या है, दुनिया एक प्रॉब्लम सॉल्व करे के वास्ते और 1000 चीज में करे है और 1000 चीज के करे के वास्ते, एक चोरी करे के वास्ते तुम्हें एक सिक्योरिटी बैठाए पड़े, फिर एक सिक्योरिटी बैठाओ सिक्योरिटी देखे के वास्ते कि वो सिक्योरिटी देखे कि चोरी नहीं हुए। तो हम लोग ऐसे, इसी को कहते हैं संसार का जंजाल। तो खाली संसार के नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी जंजाल हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में भी जंजाल हो जाएगा। और जब जंजाल बढ़ जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में तो क्या होगा, स्पिरिचुअली कंगाल हो जाएंगे हम लोग। और स्पिरिचुअल लाइफ के जब जंजाल बढ़ जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहला है साधु अपमान, वैष्णव अपराध होगा। जब स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग बोलेंगे हम लोग टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आप देखना जो भी व्यक्ति ये सब करता है वो वैष्णवों के प्रति अपराध करने लगता है। और वैष्णव अपराध मतलब एंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वैष्णव अपराध मतलब कंठी पहरो चाहे तिलक लगाओ, तिलक से अपन आपके पेंट कर लो तभी भगवान ने मिलेला है। वैष्णव अपराध में एंड ऑफ द स्टोरी। तो I come here today with one simple message. Narad ji is telling about himself and his transcendental nature, and in that description of his transcendental nature he is actually sharing with Vyasadeva his own mercies and blessings and Krishna conscious practice. महत सेवा किया है, वो चतुर्मास में उनकी मैया दासी थी, वहां पे वो साधु संतों का अचिष्ट खाया है, उनके साथ में बैठ के भागवत सुना है, वो संसार से विरक्त हुआ है। ये सब करने के बाद में आज जब संसार ब्रह्मा जी सो रहे हैं, सृष्टि विष्णु के अंदर में जाता है, फिर निकलता है, जो भी हो रहा है, नारद जी इज अनचेंज्ड। नारद जी इज अनचेंज्ड। So whoever gives the class next week, you will see नारद जी कितना पावरफुली डिस्क्राइब करते हैं। बोला कि केवल एक लाइन में पढ़ देता हूं, ट्रांसलेशन में बताया गया है, दिस इज बिकॉज आई एम फिक्स्ड इन अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ये नेक्स्ट वीक का वर्स है। whoever speaks, very very powerful service to do। मैं सोचा था आज मैं ये श्लोक बोलूंगा क्योंकि इससे ज्यादा मुझे ये श्लोक अच्छा लगता था 31, बट आई कुडंट गो देयर, बट वेरी पावरफुल। आप 2 श्लोक यूज कर सकते थे। हाँ, मैं 2 श्लोक यूज कर सकता था, लेकिन बट आई ऑलरेडी वेंट इनटू द more current issue that I wanted to address। yeah। तो प्लीज आप लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ, एंड वेरी ओपनली प्रार्थना करता हूँ, प्लीज स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग, डोंट इवन सी।
डोंट इवन गो इनटू व्हाट प्रभुपाद सेड, व्हाट प्रभुपाद फाइनल ऑर्डर्स वेर, ये हम लोग के एरिया नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज बोला कि तुम पहले अपन 16 माला और 4 नियम पहले करके ये सिद्ध कर लो, तो फिर ही फिलोसॉफिकल डिबेट में जाना। और आप लोग कभी कभी देखो ऐसे, अब एक और बात मुझे याद आ गई, इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं। जो लोग वृंदावन गए हैं, आप लोग जानते हैं, सुमुखा यू वेंट टू वृंदावन। जब कार्तिक में वृंदावन जाओ, जब लोई बाजार में जाओ, हर एक दुकान के दीवार पे और द्वारी पे प्रभुपाद जी के फोटो चिपकावल ना। क्यों क्यों है? कस्टमर अट्रैक्शन। प्रभुपाद के डिवोटेड नहीं है, अगर प्रभुपाद के डिवोटेड होते तो इस्कॉन संस्था में दीक्षा ले लेते ना। कार्तिक में सब इस्कॉन के डिवोटी जाते हैं वृंदावन। प्रभुपाद जी बोला कि कार्तिक में भक्तों को आना चाहिए वृंदावन। तो इस्कॉन डिवोटी खाली प्रभुपाद देख ले, बस माथा गिराए दे खलास भी। तो ये मैं बोल रहा हूं कि खाली प्रभुपाद के छापा देख के धोखा में नहीं पड़ जाओ। हम लोग रील पे भी देखता है, खाली प्रभुपाद के देखता है, या कोई प्रभुपाद के एक बड़ाई कर दी से हम लोग देखता है, फिर हम लोग वही ला में घुस जाता है। उसमें घुसे के बाद में तब धीरे से एक बगल कोई बगल घाव निकली, कोई प्रभुपाद जी के कोई डिफेक्ट बताई, कोई डिवोटी कोई डिफेक्ट बताई, वो वाला कैसे हृदय में बैठ जाए और अपराध के कारण बन जाए, हम लोग जान नहीं पाएगा। तबे से केयरफुल रहो। तबे से नहीं, तबे से कहावत है, बोले जितना चीज चमके उसका मतलब नहीं सोना है। तो व्यापारी भी ऐसे करे हैं प्रभुपाद जी के। लोई बाजार में तो होता है, प्रभुपाद जी के छापा लगा दे, आदमी सब वही दुकान में हल जा गोपी ड्रेस खरीदे, वही धोती खरीदे चल दे, बिकॉज प्रभुपाद के दुकान है। आप कभी कार्तिक के अलावा जाना तो उदामी सब नहीं लगा दे प्रभुपाद के फोटो, वो निकाल के रख देवा जाए। तो बी माइंडफुल प्लीज, डोंट बी। मैं सोचता हूँ, आई जस्ट फील, मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, लेकिन मैं फील करता हूं कि थोड़ा से मैं आपको बता दूं, अगर आपको गड्ढे में गिरने से बचा सकूं तो आई थिंक प्रभुपाद विल बी हैप्पी विद मी। प्रभुपाद बोले अच्छा चलो। मैं बहुत लायक तो नहीं हूं, मैं खुद पक्का डिवोटी नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को गिरने से बचा सकता हूं तो चलो, एटलीस्ट एकदम अधम हो से तो बच जाओ ना। तो प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। और प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये गीता के ज्ञान अर्जुन को भी भगवान बताए कि बिना गुरु परंपरा में लुप्त हो गया था, तो कृष्ण हैड टू कम एंड टेल अगेन। तो डिसिप्लिन सक्सेशन, प्रभुपाद जी इतना बड़ा धोखा प्रभुपाद जी ग्रंथ के साथ में नहीं करेंगे कि ग्रंथ बोलता है परंपरा चलेगा और प्रभुपाद जी बोलेंगे परंपरा खलास। ऐसे प्रभुपाद कभी नहीं कर सकते। प्रभुपाद 64 माला को 16 माला कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अगर बोले परंपरा बंद, मतलब प्रभुपाद इज नॉट बोनाफाइड एनीमोर। ये समझ आना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी जब पूरा बुक में सब परंपरा के बारे में लिखा, गुरु के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ। हम लोग बोलेंगे जय प्रभुपाद, आपका फॉलो करते हैं, लेकिन आपके बात सुन के गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तो प्रभुपाद जी बोला मेरे को क्या फॉलो करते। तो वी हैव टू, एंड इट्स फॉर एवरीवन। जो इनिशिएटेड नहीं है आपके लिए, और जो इनिशिएटेड है उसके लिए भी। खाली धब्बा लगा लिया, स्टैंप, रबर स्टैंप कर लिया कि मैं दीक्षा हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, गुरु के शरण में रहना पड़ेगा। और परीक्षा बहुत आएगा भटकाने के लिए, अगर रुक गए तो सफलता प्राप्त कर ले। तो प्लीज डू टेक दिस मैसेज सीरियसली। आई थिंक दिस विल व्हाट विल सेव आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक इट विल ओनली सेव मी। एटलीस्ट मैं अपने माइंड में रीइटरेट कर रहा हूं, बारंबार इसको ठोक ठोक के भर रहा हूं कि प्रभुपाद जी बोला कि गुरु के शरण में। तमाल कृष्ण महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, श्रील गुरुदेव बोला मैं कभी कभी देखता हूं ऑल्टर पे भी डिवोटी सेवा करता है, वो बिना गुरु के अनुमति के। वो बोला दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। मुझे पता है लोग आर्ग्यू करते हैं भगवान के ऊपर से आरती करो कि नीचे से आरती करो। तो कृष्ण महाराज बोला कि हम लोग बिना गुरु के भगवान के सेवा नहीं कर। इसीलिए सुबह मंदिर में जब मंदिर बना था, ये स्थापित किया गया था कि जब भगवान को ऑफरिंग होगा, भगवान को आरती होगा, वी कैन ओनली ऑफर टू आवर गुरु एंड द गुरु विल ऑफर इट टू कृष्ण। ये केवल मन के मजा पकड़े, वो हमें लगे हम सुपीरियर है। देखो भगवान सुप्रीम है, तो पहले आरती कृष्ण के करो, फिर राधा रानी के करो, फिर ऐसे नीचे आओ, फिर गुरु के आओ, फिर डिवोटीज के करो। सब कोई ऐसे करे, हम ऐसे करिए बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
ये सब चीज से भगवान नहीं मिली। श्री गुरुदेव बोले मैं कभी कभी देखता हूँ कि डिवोटी लोग बिना गुरु के कभी कभी डीटी वर्शिप करने जाते हैं। डीटी रूम में हलने से पहले बताया गया, जब हम लोग एक्चुअली हम उल्टा पे भी जब जाते हैं पूजा करने के लिए, सबसे पहला फूल किसको ऑफर करना चाहिए? गुरु को, बिना गुरु के नहीं। मंगल आरती में हम लोग, आप लोग मंगल आरती करते हैं, आप लोग क्या गाते हैं? कोई नहीं गाता है राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। आरती तो हम लोग कृष्ण का कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं? संसार धावा। अपन कंडीशन स्टेट हम लोग इनके, और ये कंडीशन स्टेट से छुड़ाएगा कौन? गुरु। गुरु ही वो मेघ बारिश है, फॉरेस्ट फायर में वो मेघ बारिश है। तो हम लोग ये पे स्थगित करते हैं। रामसार प्रभु ने दंडवत कर दिया, मतलब बंद। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? कोई कुछ कहना चाहता है? आप श्लोक कोट करें जी। लिखा रहता है वो, और भारत है जब देखिए ऑफ सीन लास्ट, यस। हाँ हाँ कंट्रोल, हाँ। कंट्रोल नहीं। अगेन हम लोग बोलेगा कंट्रोल करो, तो आदमी क्या करे? मायावादी क्या करे? प्रभुपद एग्जाम्पल देना। प्रभु बोले ना, ये पैसा मोह माया है, हम तो पैसा छूता भी नहीं है। प्रभुपद बोले हम तो दोनों हाथ से पैसा ले लेता। रेगुलेटेड क्या है? उसको भगवान की सेवा में लगा दें। हम लोग के सेंसस के रेगुलेट करेंगे। हम लोग खाए के बंद नहीं करेगा, स्टॉप नहीं कर देगा। हम लोग उसके भगवान के प्रसाद खिलाएगा। तो ये एक वर्ड यूज करके रेगुलेट बोले, उसका वर्ण और आश्रम की कवर कर दो। रेगुलेट जब बोले तो सन्यासी और ब्रह्मचारी की कंट्रोल, फुल कंट्रोल। और हाउस होल्डर के यूज इट ओनली फॉर कॉन्शियसनेस इंक्लूडिंग सेक्स लाइफ। तो राइट वर्ड है फॉर कवरिंग एवरीथिंग। अभी अर्जुन को बोलेगा कि कंट्रोल करो, तो अर्जुन कैसे फाइट करेगा? अर्जुन के रेगुलेशन है फाइट। कंट्रोल यूजुअली गोज विद द वर्ड स्टॉप ना, बेसिकली स्टॉप कर दो, पूरा डेड स्टॉप कर दो। अब हम लोग पूरा स्टॉप कर तो बोले कहा हम लाइक। I'm sorry Sumuka, you couldn't get it, Prabhupada. Yeah. तो प्रपात के समझने के लिए you need a speaker master who knows things in our. और प्रभुपाद को समझने के लिए आप बोलेगा आप प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है, तो आप नहीं सकता प्रभुपाद जी के समझे। द मोर यू स्टडी प्रभुपाद बुक, यू विल अंडरस्टैंड प्रभुपाद मूड एंड प्रभुपाद इंटेंट एंड प्रभुपाद डिजायर। प्रभुपाद जी लिखी है इंग्लिश में, इतना अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट कर करके उसका एक्सप्रेस करी है कि अच्छा से पढ़ो तो दम हो जाओ। हाँ, सही बात। परफेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स है प्रभुपाद। कोई एक वर्ड प्रभुपाद के नहीं सको रिप्लेस करे, नहीं बोल पाई हो कि प्रभुपाद ई वर्ड के बदले ई वर्ड यूज करता तो और अच्छा कवरेज रहता। सेंटेंस भी कैसे स्ट्रक्चर करी है कि वो एकदम कंप्लीट, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। दूसरा प्रश्न, भगवद गीता लास्ट पॉइंट होता है। जब ऐसे प्रभुपाद के जब बातचीत पढ़ो तो यहाँ फ्रेज है, वर्ड है, कोमा, यहाँ फुल स्टॉप, सब शिफ्ट करे जरूरत नहीं। सही बात। वही लगा है सब कुछ करे। Why not बोले ABD? और ऊपर आज ऋषि के बात बता रहा। अरे थोड़ा खाली सिंपल जैसे प्रभुपाद इतना पक्का चीज है, वो एक चीज में सब बात बता दे। तुम लोग जाओ, प्रभुपाद के लेक्चर है वो लंदन में 1973 में वो लेक्चर दिख रहा। वो भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के टेक्स्ट 10 और 11 के तुम लेक्चर सुनो, उसमें स्पेशली 11 में प्रभुपाद जितना पॉइंट है एक लेक्चर में कवर करके खराज कर दिया। तुम्हें तमाम सोच चेंज करे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये है उसके यहाँ ग्रामर छोड़ो, लाइन बाय लाइन लेटर के पढ़ो, कोई के तुम एक में लेक्चर में प्रभुपाद साफ कवर करने को करते कंप्लीट।
तमाम बुक को सब छानबीन के सब पई उल्टे के फाड़े की जरूरत नहीं। Maybe it will be nice, Prabhu, आप Baba group पे share कर देना link तो everyone should hear Prabhupada lecture, please. Prabhupada बहुत clear. Prabhupada जैसे he experienced, he was expecting कि इसका मामला आई। उसके एक एक पॉइंट प्रभुपाद जगह जगह पे डाल दी है और तुम उसके पॉइंट पे लगे देखो प्रभुपाद सब चीज अच्छा कर दी है। प्रभुपाद एक्सपेक्ट करेगा कंट्रोवर्सी हरदम से समाज में है। भागवत में कंट्रोवर्सी है कि नहीं? दक्षा है जो चीज तो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी थे वहां पर कंट्रोवर्सी हुई है, लड़ाई झगड़ा है, भयरा कि नहीं? कंट्रोवर्सी का कोई एक साइड ले, कोई एक साइड ले, कोई न्यूट्रल रह के फिर लड़ाई झगड़ा में पीट पटाई है। बहुत केयरफुली बोले कि कंट्रोवर्सी में एंटर हुआ था, इसमें नहीं तो अपराध हुई, समझ गया? अपराध हुई, नहीं पोलिंग हुई, की हुई, वो हुई, हम पिटाई पर कर लिया। एंड में सबसे बड़ी घटना जानो कंटिन्यूटी, बिकॉज पीपल अगर फेस लूज कर देंगे अपन मान सम्मान अपने जबरी तरह से शर्म के मारे अंत में कितना लोग क्षमा नहीं मांग रही है और लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज है ऊपर हम लोग बताई कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम रहे बाहर मजिस्ट्रेट नहीं समझा बोल रहे नहीं समझ पाए एग्जैक्टली ही इज नॉट मेड द राइट डिसीजन। हम लोग जीबीसी के लगे देखो ये मामला में हम लोग के जीवन में बड़ा केयरफुल रहती। हम लोग मेन एनिमी कौन है? कौन मेन एनिमी है? माया। हम लोग कौन सी? हम लोग सब एक के साइड, हम लोग इधर अपने एक के साइड में लड़े। वो बोले कि हम लोग प्रभुपाद के हम वोट बनता, प्रभुपाद जो बोले बोले हम प्रभुपाद जो बोले दोनों से इसके बाद बोले कि अब उसके कैसे राइट से प्रभुपाद जैसे बोले उसके तबलीग करेंगे वो वाला हम लोग ने उसमें झगड़ा करने की जरूरत है। एक गदा उठा ली थी, तलवार उठाई थी, तब शील ले ली, तब इसके काट दो, उसके पीट दो, समझ गए? कभी ऐसे रहे जब झगड़ा हो जाए तो खाली थोड़ा देरी के वास्ते शांति हो जाओ, आगे बुझ जाए। कभी कोई तुम्हें कुछ बोल दे रहा या कोई तुम्हें ईमेल भर दी, कोई टाइम गुस्सा में ईमेल कभी नहीं लिख के भेजना, समझ गया? ये संसारिक जीवन में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, सही टाइम कपड़ा भरो, चल दो, खलास। और थोड़ा देरी शांति हो जाओ, थोड़ा देरी शांति हो जाओ, बिगड़ता हुआ काम बन जाए। वेरी सिंपल लॉजिक है। उसके पेंडिंग में रख दो, उसके बाद में तुम आएगा पढ़ेगा कौन लिख दिया तुम ये ला एक डायरेक्ट क्वेश्चन प्रभु वही हांगकांग वाला लेक्चर में शिला गुरुदेव से डिवोटी क्वेश्चन करे, बोले जब ऐसे सिचुएशंस हुए तो तुम कौन सी करता, बोले कौन सी करेगा? शिला गुरुदेव बोले आई वुड टॉलरेट एंड वेट। गुरुदेव के वर्ड थे, गुरुदेव बोले मैं टॉलरेट करके वेट करता हूँ। कभी कभी कोई चीज सहन करके थोड़ा देर वेट करो, वो अपने से सुलझ जाए या उसके राइट समझ आए जाए। और जो ओपोजिशन मामला खड़ा कर दिसे हम लोग जो एनिमी नहीं है, इनफैक्ट दे आर आल्सो आवर फ्रेंड्स। यू नो व्हाई? Because now they are pushing you to think deeply about the subject matter, so we can come to the right Vaishnava Siddhanta, so Prabhupada's legacy can last for the next 10,000 years. They are not enemies. In fact, they have put us in a position to actually, fix it up in the right way. Okay. Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
Let every